Welcome back, students, to the online session. In the previous lecture, we have discussed about the diversity in the living world, and in the previous lecture, we have also discussed what is taxonomy. We have reached up to the portion of taxonomy. Taxonomy क्या होता है? Taxonomy is the branch of biology which deals with identification, classification, and nomenclature of living organisms. So, we have seen what is taxonomy. Now here, what is meant by identification? Taxonomy means under the taxonomy three classification, three criteria comes. तीन criteria आता है, that is they are identification, classification and nomenclature. तो यहाँ पर अब identification की बात हम लोग करें तो identification क्या है? This is the correct identification means correct description of an ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म का बारे में उसका करेक्टली उसको डिस्क्राइब करना. ये ऑर्गेनिज्म का कौन सा फीचर है, कैसा है दिखने में, या फिर उसका मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या क्या है, वो चीज़ डिस्क्राइब करना. दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन. सेकेंड वन इज आवर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस lecture also. Classification means grouping of organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. So I am doing a quick revision of what I have taught in our previous lesson, so that those who have not watched the previous lesson also will be able to understand this one lecture. So classification का मतलब क्या होता है? Organisms, there are around 1.7 to 1.8 million organisms, as I have told you, discovered till now by the different biologists, scientists. And ये जो 1.7 to 1.8 million organisms है, ये सब organisms को हम लोग उसका सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अनुसार अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना, अलग अलग ग्रुप में बांट देना. दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऑर्गेनिज्म ए बी एंड सी. थ्री ऑर्गेनिजम्स आर हियर एंड ऑर्गेनिज्म ए एग लेइंग, ऑर्गेनिज्म बी इज एग लेइंग, ऑर्गेनिज्म सी डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू एनिमल्स. जैसे कि हम लोग मैमल्स में होता है डायरेक्टली गिव बर्थ, वैसे ही एक यहाँ पर एनिमल है. एंड यहाँ पर दोनों जो ये ऑर्गेनिज्म है, देयर इज ए एंड बी, दिस टू आर दोस ऑर्गेनिजम्स व्हिच ले एग्स. सो नाउ यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है? हियर वी कैन सी दैट ऑर्गेनिज्म ए एंड बी हैव वन कॉमन सिमिलरिटी बिटवीन देम. सो दिस टू ऑर्गेनिजम्स कैन बी टू ग्रुप्ड टुगेदर. यहाँ पर एक हम लोग ग्रुप बना करके ए एंड बी को इसमें डाल दिए, और ये तीसरा वाला जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, इसको मैं यहाँ पर अलग ग्रुप एक बना करके डाल दिया. दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं देखना है. क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म सिमिलर हो या डिसिमिलर हो तो उसका सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अनुसार, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज वी make groups of organisms, we arrange organisms into different groups. That is known as classification. So we will be discussing about classification somewhat in more details in our next topic. Now third one criteria of taxonomy क्या है? That is the nomenclature. So what is meant by nomenclature? Nomenclature means giving scientific names to organisms. Each and every organism that is found on this earth has been given a different scientific name. सबका एक एक specific scientific name दिया जाता है, okay, so that it is widely accepted by all the scientists all over the world. That scientific name, that giving of scientific name is known as nomenclature here. So यहाँ पर nomenclature जो होता है, this nomenclature means giving of scientific name. It is given by a code. It is guided by a code. Okay, and this code is known as International Code. International Code for Biological Nomenclature. This is the general one in which both plants and animals are included. अगर that is इसका short form क्या है? ICBN.
and if it is the name being given to plants, then it is known as international code for botanical nomenclature. इसका भी short form क्या हो गया, ICBN. And in the case of animals, if the name has to be given by animals, then उसका जो scientific name है, that scientific name will be guided by a set of principles or a set of rules or laws, and it will be given by international code for zoological nomenclature, that is ICZN. If it is the case of bacteria, a वायरस का अगर नेम हम लोग दे रहे हैं, देना चाहते हैं साइंटिफिक नेम एक, तब उसको वायरस का साइंटिफिक नेम को कौन गाइड करेगा? इट विल बी गाइडेड बाय इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर, दैट इज ICVN. इट्स वेरी मच सिंपल हियर. ओके, यहाँ पर एक कोड होता है. कोड का मतलब क्या है? कोड सिंपली मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ रूल्स और ए सेट ऑफ लॉज, ठीक है, which guides and shows us, teaches us how to give correct names of plants, animals, virus, microorganism. सबका अलग अलग साइंटिफिक नेम हम लोग कैसे देंगे? उसका जो एक रूल्स होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, दैट इज नोन एज कोड. सो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एंड फॉर वायरस ऑल्सो देयर आर स्पेसिफिक codes, there are specific rules that guides the scientific name. And you see, in this present scenario, we are using the system of binomial nomenclature for giving scientific names to each and every organism. Binomial nomenclature हम लोग यूज करते हैं scientific name देने के लिए कोई भी organism का. So here binomial, what is the meaning of bi? Bi means two and nomial means names. ठीक है. So binomial nomenclature मतलब क्या है? Each and every organism is given a scientific name comprising of two words. एक scientific name दिया जाता है जिसमें कितना words होता है? 2 words होता है. Okay, so 2 words का एक scientific name दिया जाता है, and 1 word जो होता है, that is the one name is the generic name, and another name is the species name. For example, you see Mangifera indica. Mangifera indica. So here this is a scientific name, Mangifera indica. This is a scientific name of mango, Indian mango. Okay. सो यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, कंजिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स हियर. यहाँ पर 2 वर्ड्स है. ऐसे ही 2 वर्ड्स देकर के हम लोग साइंटिफिक नेम्स जो बनाते हैं, दैट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. एंड हियर ये जो फर्स्ट वर्ड है, दैट इज द मैंगीफेरा, दिस इज द जेनेरिक नेम, मीन्स नेम ऑफ द जीनस टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग. एंड इंडिका जो है, दिस वन इंडिका इज द नेम ऑफ द स्पेसिस, मतलब कि स्पेसिस कौन सा है. So species is indica and genus is Mangifera, that is our mango. So ऐसे ही करके हम लोग 2 words का नाम एक बनाते हैं in the binomial nomenclature. और ये binomial nomenclature में जो names होता है, ये naming के लिए बहुत सारा फिर rules होता है. So some of the rules we will be seeing here in the binomial nomenclature. So what are the rules? Rules for binomial nomenclature of organisms. So the first rule we have just seen now. First rule, what is it? That each and every organism is given a scientific name consisting of 2 words. Consisting of 2 words. And first word is the generic name, that is the name of the genus to which the organism belong, and the second word is the species name, that is the name of that particular species. Okay, वो particular species का नाम क्या है वो. Second rule is that generic name जो होता है, this generic name will always begin with a
कैपिटल लेटर। जब हम लोग कभी भी एक साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हम लोग उसका जेनेरिक नेम जो है, वी विल ऑलवेज स्टार्ट द जेनेरिक नेम विथ ए कैपिटल लेटर। एस हियर यू कैन सी मैंगीफेरा, दिस इज द जेनेरिक नेम। यहाँ पर मैंने एम जो है कैपिटल लेटर में लिखा हूँ। वाई? बिकॉज इट इज़ द रूल, it is the rule that is under the international code for biological nomenclature, and so this is the rule. Mangifera should always begin with a capital letter because it is the name of the genus to which the organism belongs. And species name जो होता है, species name should always begin with a small letter. As you can see here, indica. So here indica is the specific species name, and I have begin this indica with the small letter I because this is the specific species name. And here you should see generic name. Generic name क्या होता है? Always comes first, and species name comes later. ओके जो जेनेरिक नेम होता है हम लोग का, जेनेरिक नेम सबसे पहले आता है, स्पेसिस नेम से पहले आएगा। हियर यू कैन सी जेनेरिक नेम इज एट द फर्स्ट, फिर बाद में स्पेसिस नेम मैंने यहाँ पर दिया हूँ। सो जेनेरिक नेम विल ऑलवेज कम एट द फर्स्ट एंड स्पेसिस नेम विल ऑलवेज कम एट द लेटर, मीन्स एट द सेकेंड। थर्ड रूल इज दैट while we are writing, underline each of the two words separately. So here you can see in Mangifera indica I have underlined these two words separately. दोनों वर्ड्स को जब भी हम लोग लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तब जाकर के दोनों वर्ड्स को क्या करना है, ऐसे करके अलग अलग अंडरलाइन कर देना है। बट अगर हम लोग कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, जब while we are typing or printing in the computer, then what should we do? While typing, the two words must be इटालिसाइज्ड। दोनों को क्या कर देना है? इटालिसाइज्ड कर देना है, इटालिक लेटर में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यूज इटालिक लेटर हम लोग जब कंप्यूटर में लिखते हैं तो इटालिक लेटर कैसा होता है, ऐसा करके कुछ होता है, ऐसा करके थोड़ा सा स्लैंटेड वे में होता है। सो दिस इज द इटालिक लेटर। यू सर्च इटालिक लेटर कैसा होता है, यू सी बाय योरसेल्फ। सो व्हाइल प्रिंटिंग, व्हाइल टाइपिंग, the two words must be italicized always, and while handwritten, while writing, when it is handwritten, the two words must be underlined separately. And here number 5, the name of the person, the name of the person who has invented, who has discovered the organism for the first time can also be represented, can also be included here. The name of the country where the organism has been discovered for the first time can also be included here, in honor to give, to honor the name of the discoverer or to honor the country in which it has been discovered. तो ऑनर देने के लिए जो डिस्कवरर है उसको ऑनर देने के लिए, ऑनर करने के लिए, या फिर जो कंट्री में डिस्कवरी हुआ है उस कंट्री का नेम ऑनर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्री नेम या फिर डिस्कवरर नेम जो है वो भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हाउ यू कैन सी हियर मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका मान लेते हैं, आई एम रिटन हियर, हैंड रिटन, हाथ से मैं लिखा हूँ, सो आई एम अंडरलाइन हियर। सो नाउ आफ्टर दिस टू वर्ड्स आई कैन एड हियर LINN, लिन। What is the short, what is the meaning of lin? Lin means the name of the discoverer of this Mangifera indica species. Mangifera indica species जो है, organism जो है, उसको कौन डिस्कवर किया था for the first time? It was discovered by Carolus Linnaeus. This is Lin means Linnaeus. Carolus Linnaeus नाम का जो बंदा था, that is known as the father of taxonomy. देखेंगे हम लोग कुछ देर में। father of taxonomy Carolus Linnaeus, इसने क्या किया था, मैंगीफेरा इंडिका का नाम दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम, साइंटिफिक नेम दिया था।
तो उसका नाम जो है हम लोग यहाँ पर लिनियस को ऑनर करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसका नाम जो है डाल सकते हैं. वी विल ऐड दिस नेम, हिज नेम आफ्टर दिस टू वर्ड्स. ये दोनों वर्ड्स के बाद हम लोग डाल सकते हैं ऐसे करके. सो द नेम ऑफ द ओरिजिन कंट्री, जहाँ पर ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, ओरिजिन कंट्री, और द ऑथर मीन्स डिस्कवरर, कैन बी इंक्लूडेड जस्ट आफ्टर द स्पेसिस नेम in short form or abbreviated form. Okay, so in abbreviated form, short form में हम लोग name of the discoverer जो है, name of the author जो है, या फिर जहाँ पर origin हुआ है उस country का नाम हम लोग यहाँ पर short form में डाल सकते हैं. This is just to honor the discoverer, just to honor the country in which it has been discovered. So these are the rules which guide the binomial nomenclature. After this, we can now discuss about the classification. So what is meant by classification? So here we will see classification जो है थोड़ा सा broad topic है. We have seen what is classification. Classification means systematic arranging of organisms into groups based on their similarities and dissimilarities. अलग अलग groups जो बनाते हैं systematic way में, that is known as classification. सो क्लासिफिकेशन का अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करें तो इट वाज स्टार्टेड बाय एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने पहले, फादर ऑफ बायोलॉजी जिसको बोलते हैं एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने पहले क्या किया था, ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम. एंड ये जो पहली बार क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस मोर इन डिटेल्स. Now here let us see only a brief. एरिस्टोटल ने पहले स्टार्ट जो किया था ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट वाज बेस्ड टोटली ऑन आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स. आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था. आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, मीन्स द कैरेक्टर्स आउटसाइड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. आउटसाइड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी habitat, okay, habitat, color of the flower, color of the organism. Habitat means the dwelling place of the organism, कहाँ पे वो रहता है, aquatic में रहता है कि terrestrial में रहता है, वो देख करके. और फिर नेचर, इसका नेचर देख करके. ओके, नेचर मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल classified organisms into two groups based on their habitat. habitat में क्लासीफाई किया था जैसे कि aquatic and terrestrial. terrestrial मीन्स उसका habitat देख करके क्लासीफाई किया था एरिस्टोटल. aquatic and terrestrial. so aquatic means those organisms, जितना भी सारा organism है, whether it may be plant and animal और कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर नहीं हुआ था एरिस्टोटल के सामने में. तो वहाँ पर ऑब्वियसली प्लांट्स था, फंजाई जो अभी हम लोग बोलते हैं फंजाई था, और एनिमल्स था. सो दिस प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स वेर इंक्लूडेड दोज हु वेर लिविंग ऑन द इन वाटर, जो पानी के अंदर में रहता है, पानी के अंदर में पाया जाता है. दिस ऑर्गेनिजम्स ही इंक्लूडेड इन द एक्वाटिक ग्रुप, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स विच वर फाउंड ऑन द लैंड वेर इंक्लूडेड इन द टेरेस्ट्रियल ग्रुप. सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. मीन्स आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, मीन्स इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स और एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब उसका क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ पे रहता है, ये देख करके उसका हैबिटेट, और फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, नेचर हो गया, ठीक है, उसका कलर हो गया, ये सब हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है. तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और एक होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस इज द सेकेंड वन, natural system of classification. This natural system of classification
is based on morphological, anatomical and paleontological records and relationships. सो यार मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, यहाँ पर भी एक्सटर्नल फीचर्स को इंक्लूड करेंगे. एनाटॉमिकल मीन्स इंटरनल फीचर्स, यानी कि इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी के अंदर में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन्स क्या फंक्शन करता है, सेल कैसा है उसके अंदर में, टिश्यू कैसा है उसके अंदर में, ये देख करके जो क्लासीफाई करते हैं इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर. एंड पैलेंटोलॉजिकल मीन्स फॉसिल रिकॉर्ड्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स बाय ऑब्जर्विंग द फॉसिल रिकॉर्ड्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व करके भी यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का फॉसिल दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत मिलता जुलता है, then these two organisms can be said to be closely associated with one another and they can be grouped together. ठीक है ना? फॉसिल्स रिकॉर्ड, फॉसिल्स भी देख करके हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स भी, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर भी, और फॉसिल रिकॉर्ड्स, इवोल्यूशनरी. फॉसिल रिकॉर्ड्स का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. इवोल्यूशन कैसे हुआ है? इवोल्यूशन का मतलब है कि ग्रेजुअल चेंज, gradual changes in the structure of organism over millions of years so as to adapt itself in the changing environmental condition. changing environmental condition में adapt करने के लिए अपने बॉडी में क्या करता है ऑर्गेनिजम्स? मॉडिफिकेशन बहुत सारा लाता है, चेंजेस बहुत सारा लाता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ह्यूमन बींग्स. For the first time human beings when come on the earth, when appear on the earth, they were just crawling on the ground just like babies do. crawling करता था. okay, and they when they saw some fruits hanging on the trees, they try to catch the fruits. After that there came one tendency inside their body that they should stand erect so as to catch the fruits. फल तोड़ने के लिए खड़ा, काश हम लोग खड़ा हो सकते ताकि हम लोग जो फ्रूट्स हैंगिंग है ट्री में उसको तोड़ करके खा सकते. इसके लिए अपने बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर में एक चाहत, एक टेंडेंसी पैदा हुआ, और वही टेंडेंसी जो है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वही टेंडेंसी ने क्या किया ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, उसका जीन जो है, जीन में थोड़ा सा चेंजेस ला दिया. और जीन जो है ऐसे ही थोड़ा चेंज होते जीन जो है टोटली चेंज हो गया. सो वो क्रॉलिंग करने वाला अब ह्यूमन बींग्स अब नहीं मिलता है. नाउ ओनली ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इरेक्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. एंड ये हम लोग ऐसा चेंज क्यों हुए हैं? सो एज टू अडॉप्ट आवरसेल्फ इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. मान लो अगर अभी तक हम लोग वही करते, क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड करते, घुरक कर चलते, तो क्या हम लोग अभी जो इतना साइंटिफिकली एडवांस हुए हैं ये हो पाते? No, we will not have been able to be scientifically this much scientifically advanced, because हम लोग तो वही फ्रूट्स ढूंढने में लगे रहते. इतना सारा जो 6.25 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो सब सारा ह्यूमन बींग्स फ्रूट्स, बस फ्रूट कहाँ पर है वो ढूंढने में लग जाते, और फिर फ्रूट्स को ढूंढ कर कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसको जंप मारेंगे, यही कोशिश में लग जाते. सो वी विल नॉट हैव बीन दिस मच साइंटिफिकली एडवांस्ड टिल नाउ. ओके, और सबसे एकदम सोशली सबसे एकदम डेवलप ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल जो है, वो ह्यूमन बींग्स हम लोग नहीं हो पाते. तो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडाप्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ऑल द ऑर्गेनिज्म, सिर्फ हम लोग नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर सेवरल थाउजेंड जनरेशंस के बाद, बहुत सारे जनरेशंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस लाते हैं. एंड दिस चेंजेस प्रोवाइड्स अस सस्टेनेबिलिटी इन द इन्वायरमेंट. चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम लोग को सस्टेन कराता है, अडाप्ट करा के रहता है. सो दिस इज नोन एज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इवोल्यूशन. यू कैन सी इन सम ऑफ द पिक्चर्स, अर्लियर ह्यूमन बींग्स क्रॉलिंग करता था, फिर जाकर के थोड़ा सा इरेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सा इरेक्ट हुआ, फिर पूरा एकदम टोटली इरेक्ट हो गया. और उसी के कारण ह्यूमन बींग का जो स्पेसिस नेम है वो भी बदलते जा रहा है. नाउ स्पेसिस नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज व्हाट, होमो सेपियंस बोलते हैं. इससे पहले क्या था, इससे पहले होमो इरेक्टस था. जब ऑर्गेनिक ह्यूमन बींग्स एकदम पूरा टोटली इरेक्ट होकर के खड़ा हो गया था, तब जाकर के होमो इरेक्टस था. उससे पहले होमो निएंडरथैल्स, होमो हैबिलिस है ना. सो ये सब और भी बहुत सारे हैं, ये सब बहुत सारे
ह्यूमन बींग्स का स्टेजेस है, और ये सब ह्यूमन बींग्स स्टेज बाय स्टेज इवॉल्व करके अभी हम लोग होमो सेपियंस बने हैं। सो दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विल हैव मेनी मोर एडवांटेजेस देन दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से बहुत ज़्यादा ही एडवांटेजेस इसमें मिलता है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर देख लो, अगर ऑर्गेनिजम्स को एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, जो प्लांट है, एनिमल है जो पानी के अंदर में रहता है, फॉर एग्जांपल फिश, देयर आर फिश लिविंग इनसाइड द वाटर एंड देयर आर मेनी प्लांट्स, वेलिस्नरिया, वाटर हाइसिंथ दैट लिव इन द वाटर। सो ये वेलिस्नरिया, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ और फिर फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सब जो पानी में रहता है, सबको यहाँ पर मैं अभी अगर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फॉलो करता हूँ तो सबको यहाँ पर मैं एक्वाटिक में ही डालूंगा। तो अब मुझे बताओ कि फिशेस और वाटर लिली में क्या ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? कुछ भी तो सिमिलरिटी नहीं है, देयर इज़ नो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हम लोग एक्वाटिक में अगर क्लासीफाई कर देते हैं, देन इट विल बी वेरी मच डिसएडवांटेजेस फॉर अस। और ऐसा पहले होता था, एरिस्टोटल जब किया था फर्स्ट टाइम, एरिस्टोटल और उसका स्टूडेंट थियोफ्रास्टस, द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल इज थियोफ्रास्टस। तो एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने मिल करके, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो सब भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। जैसे कि प्लिनी द एल्डर, PLINY, प्लिनी द एल्डर, इसने भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही फॉलो किया था। ये हो गया, एरिस्टोटल हो गया। ये सब जो है, दिस साइंटिस्ट, दिस बायोलॉजिस्ट, ये सब बहुत सारे डिसएडवांटेज पाया था। दे फाउंड मेनी डिसएडवांटेज इन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जस्ट आई हैव टोल्ड यू हियर। ओके, कुछ साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, प्लांट्स जो है, जितना सारा प्लांट्स है, सब प्लांट्स को मेडिसिनल ग्रुप, नॉन मेडिसिनल ग्रुप में, सिर्फ दो को ग्रुप में क्लासीफाई किया, मेडिसिनल ग्रुप एंड नॉन मेडिसिनल ग्रुप। तो वहाँ पर भी तो बहुत सारा डिसएडवांटेज है। अगर फंजाई है तो फंजाई को भी वही मेडिसिनल, नॉन मेडिसिनल ग्रुप में डाल देता है। मैनी डिसएडवांटेज आर देयर। सो दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल, इज कम्प्लीटली रिजेक्टेड, पूरा एकदम रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद हम लोग कौन सा फॉलो करने लगे, वी स्टार्टेड फॉलोइंग द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली बार बहुत एक सिस्टमेटिक वे में प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, ही वाज द कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने पहली बार प्लांट एंड एनिमल को सिस्टमेटिक वे में क्लासिफाई किया था। We will be discussing in details in our next lecture about the Carolus Linnaeus and his system of classification. There is 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and now 6 kingdom classification के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। Up to this for today, in our next lecture let us meet together once again and stay home in your stay safe in your home, save lives. Thank you for today.